السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگ تدبر قرآن سے کر رہے تھے۔ آیت نمبر یہ جو تھی نا 21 آنورڈ چل رہی تھی۔ صحیح۔ اچھا، وہ جو یا یوحنا ناسو سے شروع ہو رہی تھی نا، مشرکوں سے خطاب تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ رہی آیت نمبر 21۔ ہاں ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بات یہاں پہ اینڈ ہوئی تھی کل کہ عبادت تو وہ کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کرتے جس طرح اسلام کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اینڈ کیا تھا یہ رہا۔ نیز اس کے اندر یہ بات بھی چھپی ہوئی ہے کہ تم خدا کی جس بندگی کے مدعی ہو وہ در حقیقت خدا کی بندگی نہیں ہے۔ خدا کی بندگی کا صحیح طریقہ وہی ہے جس کی دعوت یہ کتاب دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ خلقکم والذین من قبلکم، خلقکم کے ساتھ والذین من قبلکم کا اضافہ اس لیے فرمایا ہے کہ مشرکین عرب اس بات کے تو قائل تھے کہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اپنے بزرگوں میں سے انہوں نے بعضوں کو خدائی صفات میں شریک قرار دے کر خالق کی صف میں کھڑا کر دیا تھا۔ صحیح ہے، مشرکین عرب اس بات کے تو قائل تھے کہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، صحیح ہے، لیکن اپنے بزرگوں میں سے انہوں نے بعضوں کو خدائی صفات میں شریک قرار دے کر خالق کی صف میں کھڑا کرا دیا تھا اور ان کے بت بنا کر ان کی پرستش کرنے لگ گئے تھے۔ یہاں قرآن نے ان کے ساتھ ساتھ ان کے تمام اگلوں کو بھی عام مخلوقات الہی میں شامل کر کے اشارتاً اس بات کی طرف بھی توجہ دلا دی کہ خدا کی بندگی کرنی ہے تو نہ صرف اپنے آپ کو مقہور مان مقہور مان کر خدا کے آگے جھکو، بلکہ ان کو بھی خدا ہی کی مخلوق مانو جن کو تم نے اپنی حماقت سے خالق کا درجہ دے رکھا ہے۔ اچھا اچھا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا خلقکم کے اس نے تم سب کو پیدا کیا اور وہ جو تم سے پہلے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی یہ مینشن کرا دیا نا یہاں پہ۔ صحیح ہے، تاکہ وہ کیونکہ خلق کا ورڈ آ رہا ہے نا، تاکہ وہ خالق کی صف میں کھڑا نہ کر سکیں ان کو نا۔ صحیح ہے، اس لیے۔ اچھا پھر ہے لعلکم تتقون، لعل مختلف معنوں کے لیے آتا ہے جن میں سے کسی چیز کے ممکن و متوقع نتیجے کے بیان کے لیے بھی اس کا استعمال مشہور و معروف ہے۔ ہم نے اس کو اسی معنی میں یہاں لیا ہے اور جس سیاق میں یہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ہمارے نزدیک اس کے یہی معنی صحیح ہیں۔ تتقونا کے یہاں دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ تم تقوی حاصل کرو، دوسرے یہ کہ تم خدا کے غضب اور اس کے عذاب سے بچو۔ اچھا، تتقونا کے دو میننگز، ایک دو یہاں پہ مطلب یہاں پہ پرٹیکولرلی دو میننگ بتانے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ تم تقوی حاصل کرو، سیکنڈلی یہ کہ تم خدا کے غضب اور اس کے عذاب سے بچو۔ یہاں دونوں معنوں کے صحیح ہونے کا امکان ہے لیکن ہم نے دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے، اس صورت میں اس کے مفعول کو محذوف ماننا پڑے گا۔ اس محذوف کو قرآن نے اس کے بعد والی آیت میں خود کھول دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تتقونا فعل ہے، اس کے بعد ایک مفعول ہے جو کہ ہڈن ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ مفعول کھلے گا کہاں؟ اگلی آیت میں جا کے۔ صحیح فرمایا ہے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، آیت نمبر 24۔ بس اس آگ سے بچو جس کے ایندھن آدمی اور پتھر بنیں گے۔ ٹھیک ہے، تم سب بچو، اور پھر آگے آ رہا ہے اس آگ سے، تو نیکسٹ آیت میں آ رہا ہے کہ کس سے بچنا ہے؟ آگ سے جس کے ایندھن آدمی اور پتھر بنیں گے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، آیت نمبر 22۔ فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ انداد ند، اچھا انداد ند کی جمع ہے جس کے معنی ہمسر، ہم پایا، مد مقابل، مشابہ اور کفو کے ہے، اور کفو کے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، انداد ند کی جمع ہے جس کے معنی ہمسر، ہم پایا، مد مقابل، مشابہ اور کفو کے ہیں۔
اہل عرب صفات باری سے متعلق ان تمام بنیادی مقدمات کو تسلیم کرتے تھے جن سے بدیہی طور پر توحید ثابت ہوتی ہے. بدیہی بولتے ہیں نا اسٹارٹنگ سے، میرے خیال سے نا. اچھا. اہل عرب صفات باری سے متعلق ان تمام بنیادی مقدمات کو تسلیم کرتے تھے جن سے بدیہی طور پر توحید ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خدا کے شریک بھی مانتے تھے. اس وجہ سے یہ فرمایا کہ جب تم خود اس بات کو جانتے ہو کہ خدا ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے تمہارے اگلوں کو پیدا کیا ہے، اسی نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا ہے، اسی نے آسمان کا شامیانہ تانا ہے، اسی نے آسمان سے پانی اتارا ہے، اور اسی نے تمہارے رزق کے لیے قسم قسم کے پھل اور میوے پیدا کیے ہیں، تو پھر ان کو خدا کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو جنہوں نے ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کیا ہے؟ یہاں جانتے ہو کا مفہوم یہ ہے کہ ان ساری باتوں کو مانتے اور ان کا اقرار کرتے ہو. اچھا بتائیے گا، کوئی بات کرتی ہیں یہاں پہ؟ ہوں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا یہ کیا ہے فَأْتُوا کے اوپر؟ اچھا وہ صحیح پیش اور وجہ صحیح ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. شہید کا مفہوم. ادعوا شہداءکم، شہید قوم کے اس لیڈر، ترجمان اور نمائندے کو کہتے ہیں جو اہم مواقع پر اس کی ترجمانی اور نمائندگی کرتا ہے اور اس کا حمایتی بن کر کھڑا ہوتا ہے. یہ میننگ آپ لوگوں نے پہلے سنا تھا؟ قوم کا لیڈر. اچھا. تو ملٹیپل میننگز ہوں گے یقیناً. سمپل میننگ تو وہ ہوتا ہے نا، گواہ کا میننگ ہو جاتا ہے، صحیح ہے، جو گواہی دیتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ والا میننگ کچھ لیا ہے. دیکھتے ہیں. شہید قوم کے اس لیڈر، ترجمان اور نمائندے کو کہتے ہیں جو اہم مواقع پر اس کی ترجمانی اور نمائندگی کرتا ہے اور اس کا حمایتی بن کر کھڑا ہوتا ہے. یہ حمایتی انسانوں میں سے بھی ہو سکتے تھے اور اہل عرب کے اعتقاد کے مطابق جنوں میں سے بھی ہو سکتے تھے. اچھا. یہ حمایتی انسانوں میں سے بھی ہو سکتے تھے اور اہل عرب کے اعتقاد کے مطابق جنوں میں سے بھی ہو سکتے تھے. عرب جاہلیت میں شاعروں اور خطیبوں کی بڑی عزت و عظمت تھی. اچھا. اس وقت عرب کے جاہلیت کے دور میں شاعروں اور خطیبوں کی بڑی عزت و عظمت تھی کیونکہ یہی لوگ تمام اہم مواقع پر قومی وقار کے محافظ بن کر کھڑے ہوتے تھے. مشرکین عرب یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ ہر شاعر کے ساتھ ایک جن ہوا کرتا ہے. صحیح ہے. مشرکین عرب یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ ہر شاعر کے ساتھ ایک جن ہوا کرتا ہے جو اس کو شعر الہام نہیں جو اس کو شعر الہام کرتا ہے. چنانچہ وہ قرآن کے متعلق بھی یہ گمان رکھتے تھے کہ یہ بھی اسی قسم کے الہام کا کرشمہ ہے. ہم، چنانچہ وہ قرآن کے متعلق بھی یہی گمان رکھتے تھے کہ یہ بھی قرآن بھی اسی قسم کے الہام کا کرشمہ ہے. ان کے انہی خیالات کی بنا پر ان سے مطالبہ کیا گیا کہ اگر تم قرآن کو کسی انسان یا جن کی گھڑی ہوئی چیز سمجھتے ہو تو اپنے ان حمایتیوں کی مدد سے اس کے مانند ایک ہی سورہ پیش کرو. اگر یہ تمہارے حمایتی اس نازک موقع پر بھی، جبکہ تمہارے آبائی دین کے ساتھ ساتھ خود ان کی خدائی بھی مورز خطر میں ہے، تمہاری مدد کے لیے نہ اٹھے تو سمجھ لو کہ یہ قرآن خدائی کلام ہے اور تمہارے یہ سارے دیوی دیوتا بالکل بے حقیقت ہیں. قرآن میں دوسرے مواقع پر اس مضمون کی وضاحت بھی موجود ہے. مثلاً فرمایا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
सूर्य बनी इसराइल आयत नंबर 88। कह दो अगर तमाम जिन व इंस मुत्तफिक होकर भी जोर लगाएं कि इस कुरान की मिसाल पेश करें तो इसकी मिसाल ना पेश कर सकेंगे, अगरचे वो एक दूसरे के मददगार भी बन जाएं। दूसरी जगह इस मजमून की मजीद वजाहत हुई है, वदउ मनिस्तताअतुम मनिस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फ़इन लम यस्तजीबू लकुम फ़अलमू अन्नमा उनज़िला उनज़िला बिइल हाँ उनज़िला बिइल्मिल्लाह, ऐसे ही लग रहा है, बिइल्मिल्लाह। सूरह हूद आयत नंबर 13-14। और अल्लाह के सिवा जिनको भी तुम बुला सकते हो अपनी मदद के लिए बुला लो अगर तुम सच्चे हो। बस अगर वो तुम्हारी इमदाद को ना पहुंचे तो समझ लो कि ये चीज अल्लाह के इल्म से उतरी है। अच्छा, इसमें क्या बात हो रही है कि वो शायरों और खतीबों की तो बहुत वो करते थे, ठीक है ना, ये इसका तो हमें अंदाजा था पहले, ठीक है, कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा उनको ऊंचे मुकाम पे रखते थे शायरों और खतीबों को, और वो ये समझते थे कि हर शायर के साथ एक जिन अटैच्ड होता है, ठीक है, और वो उसको जो अशार वगैरह है वो इल्हाम कर रहा होता है। इल्हाम उसको बोलते हैं ना, जैसे वैसे हम लोग इल्हाम जनरल टर्म के तौर पे अगर देखें तो मतलब अल्लाह ताला की तरफ से कोई थॉट जहन में आ जाना, कोई आइडिया जहन में आ जाना, इसको बोलेंगे क्या? दिल में कोई ख्याल पैदा होना, दिल है? में डाल दिया जाए। क्या क्या क्या? दिल में बात आ जाती ना उन लोगों के, दिल में आ जाती तो अल्लाह की इल्हा तरफ से अल्लाह की तरफ इल्हam। से इसको एसोसिएट करते हैं ना, इल्हाम वर्ड को ना, कि अल्लाह की तरफ से आ जाना दिल में, ठीक है। तो ये था, और वो ये समझते थे कि ये जो अशआर इल्हाम इनको हो रहे होते हैं, ठीक है, ये जिनों की वजह से हो रहे होते हैं। सही है, जिन उनको हेल्प कर रहे होते हैं, वरना वो इतने आला पाए का कैसे अशआर वगैरह पढ़ सकते हैं। और ठीक है ना, तो ये जिनों को करने, तो इसीलिए फिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मतलब शायर का इस तरह से कुछ वर्ड्स बोलते थे ना, जिसमें से एक शायर भी था ना, कि मतलब डेफिनेटली फिर उनके जहन में यही चीज आती होगी ना कि इनके साथ भी कोई जिन कनेक्टेड है जो इनको इस तरह का कलाम मतलब इनके सामने प्रेजेंट कर रहा है, फिर वो हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, खुद से तो नहीं ये बना सकते, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट को वो मानने को तैयार नहीं थे कि अल्लाह ताला की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आ रही है। और कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है फर्दर, या क्लियर है कॉन्सेप्ट, आगे बढ़े? सही है। अच्छा भाई, तो फिर क्या है, तो उस पे फिर अल्लाह ताला ने उनको चैलेंज दिया था ना कि अगर इसी तरह है तो फिर एटलीस्ट एक सूरा ही ले आओ। इससे बल्कि एक आयत का भी आया है ना कुरान में कहीं पे, यहाँ पे तो शायद सूरा का है कि एक आयत ही जैसी ले आओ, मेरे ख्याल से आगे जाकर आता है कहीं पे ना, कि अगर सच्चे हो तो इस तरह एक आयत ही कुरान पाक जैसी आयत की तरह ले आओ, मुझे जैसा याद पड़ रहा है। यहाँ पे सूरत का है कि इस जैसी सूरत ले आओ, ठीक है। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, कि दो मतलब हो सकते हैं। अच्छा, चैट सही है, राइट। अच्छा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, कि दो मतलब हो सकते हैं। एक ये कि तुम कुरान के बारे में जो गुमान रखते हो अगर उसमें सच्चे हो। दूसरा ये कि अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो कि खुदा के सिवा तुम्हारे कुछ और हिमायती और मददगार भी हैं। अगर फिलवाक़े तुम्हारे कुछ हिमायती और मददगार मौजूद हैं तो उनको मदद के लिए बुलाओ। इससे ज्यादा उनकी मदद तलब करने और उनके तुम्हारी मदद के लिए उठने का और कौन सा मौका अहम हो सकता है। सही है। एक दो मतलब निकले इन कुंतुम सादिकीन से, कि अगर तुम सच्चे हो, एक ये कि तुम कुरान के बारे में जो गुमान रखते हो अगर उसमें सच्चे हो। सही है। दूसरा ये कि तुम ये इस अगर इस बारे में सच्चे हो कि तुम्हारे और हिमायती और मददगार हैं यही जिन वगैरह, ठीक है, तो ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मौका हो गया ना उनके लिए, क्योंकि उनके जो बाप दादा का दीन है वो स्टेक पर आ गया ना, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए आगे आए और लाएं वो जो इल्हाम वगैरह करते हैं और सब इस तरह की चीजें, तो और ले आए इस जैसी एक सूरत, कुरान तो यही चैलेंज दे रहा है ना। अच्छा, फिर क्या है, मेरा अपना रुझान इस दूसरे मफहूम की तरफ है, इसकी वजह यह है कि ये पहले मफहूम पर भी हावी हो जाता है। ठीक है, दूसरा इसी तरफ इनका रुझान है कि अपने अगर इस बारे में सच्चों के और हिमायती और मददगार भी हैं जो हेल्प करते हैं तो फिर उनको ले आओ सामने, ठीक है। वो सूरत प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिक ही पहला मफहूम भी पूरा हो रहा है कि कुरान के बारे में अगर वो जो मतलब कहते हैं ना, झूठ मान रहे थे ना बेसिकली कुरान को, ठीक है, तो अगर इस बारे में तुम सच्चे हो, तुम्हारा अकीदा सच्चा है, ठीक है, कि कुरान हक किताब नहीं है, सही, तो वो इनडायरेक्टली इस पॉइंट से भी फिर प्रूव हो जाएगी ना। सही। ओके। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहा
वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन, आयत नंबर 24। बुतों को अजाब देने की वजह, बुतों को अजाब देने की वजह, वक़ूदुहा अन्नासुल वल वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, ये अल्फाज। चान और पत्थर है ना, तो हम्म, बुता पत्थर के बुता जो रहते थे ना उनको भी डालेंगे ना अल्लाह आग में, तो वो बताई जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ सही सही सही, ठीक है। तो ये अल्फाज उस आग के मिजाज को जाहिर कर रहे हैं जिससे कुरान के उन झुटलाने वालों को डराया गया है। सही। ये अल्फाज वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, ये अल्फाज जो हैं उस आग के मिजाज को जाहिर कर रहे हैं जिससे कुरान के इन झुटलाने वालों को डराया गया है। इनसे मालूम होता है कि उस आग के मरगूब ईंधन अव्वलन तो वो लोग होंगे जिनके अंदर कुफ्र और शिर्क का मवाद मौजूद होगा। मरगूब ईंधन क्या, मरगूब किसे कहेंगे? पसंदीदा मरगूब रगबत से। सही। अच्छा, तो ईंधन अव्वलन, उस आग की ईंधन अव्वलन तो वो लोग होंगे जिनके अंदर कुफ्र और शिर्क का मवाद मौजूद होगा। अच्छा, इसको जरा सा चेक करने की जरूरत है कि कुफर और शिर्क यानी कि ये नहीं कहे कि टोटली कुफार टोटली काफिर की कैटेगरी में आ रहे हैं, या मुश्रिक की कैटेगरी, उनका मवाद मौजूद होगा यानी कि कुछ कुछ एलिमेंट्स वगैरह भी जिनके अंदर मौजूद होंगे, ऐसा लग रहा है ना मवाद से। ठीक है। तो शिर्क बोले तो कुफ्र तो इनकार ही है, लेकिन हम्म शिर्क भी क्या है, एक मानो में अल्लाह के साथ, तो अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंदीदा जो शिर्क है ना, हम्म अल्लाह से माफ करेंगे, शिर्क को माफ ना करेंगे। हम्म। तो कुफर और शिर्क का मवाद अगर मौजूद होगा, ठीक है, जिनके अंदर, तो वो ईंधन बनेंगे। उन्हीं के जिस्मों से ये आग अपने असली रंग में भड़केगी। उन्हीं के जिस्मों से ये आग अपने असली रंग में भड़केगी, और दूसरे दर्जे पर उसके ईंधन वो पत्थर होंगे जो माबूद की हैसियत से दुनिया में पूजे गए हैं या पूजे जा रहे हैं, क्योंकि इस परस्तिश के सबब से शिर्क का वो आतिशगीर मादा कुछ ना कुछ उनके अंदर भी पैदा हो जाता है जो उस आग की महबूब ग़िज़ा है। अव्वलन तो बता रहे हैं ना, वो लोग होंगे जिनके अंदर कुफ्र और शिर्क का मवाद मौजूद होगा। ठीक है ना, अल्लाह ताला हमें बचाए ऐसे लोगों में शामिल होने से। सेकेंडली ये कह रहे हैं कि उन्हीं के जिस्मों से ये आग अपने असली रंग में भड़केगी। ठीक है। दूसरे दर्जे पर उसके ईंधन वो पत्थर होंगे जो माबूद की हैसियत से दुनिया में पूजे गए हैं या पूजे जा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इस परस्तिश के सबब से शिर्क का वो आतिशगीर मादा कुछ ना कुछ उनके अंदर भी पैदा हो जाता है जो उस आग की महबूब ग़िज़ा है। अच्छा, उन बुतों के अंदर भी वो मादा थोड़ा बहुत आ जाता है। ठीक है। आग हड्डी और उसकी चर्बी की आग कैसी रहती ना, हड्डी को भी जब जलाते हैं तो कैसी रहती, पत्थर की आग कैसी रहती, ये लकड़ी हम्म। की आग वाली में फर्क रहता ना। तो वो अच्छा। अल्लाह ताला किस तरीके से जो उनकी कैटेगरीज का जो है, उनका ही जिस्म, उनकी हड्डी जो हम्म है, फिर पत्थर की आग, फिर वो एक दूसरे से जैसा दुनिया में चिपक के रहते थे ना वो लोग एक दूसरे की अच्छा, मोहब्बत में, वहां भी वो लोग एक दूसरे की आग में। तो बहरहाल बहुत ही डरने वाली बात है यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? अल्लाह। फिर है अल हिजारा का, अल हिजारतु का लफ्ज अगरचे आम है, लेकिन मौके कलाम से वाज़ेह है कि इससे मुराद वही तराशे हुए पत्थर हैं जिनकी देवी देवता की हैसियत से परस्तिश होती है। उनको दोजख में फेंकने से मकसूद दरअसल उनको अजाब देना नहीं, बल्कि उनके परसारों के अजाब में इजाफा करना होगा। इस तरह उनको देखा जाएगा कि जिनके आगे वो दुनिया में अ, दंडोत करते रहे हैं और जिनकी ज़ियाफत के लिए दूध और हलवे पेश करते रहे हैं, उनकी यहाँ क्या गत बन रही है। इसको कुछ बता सकता है कोई? अच्छा, तो कुफर। पत्थर की आग तो तेज रहती ना, हम्म पत्थर जब जलता है पहले तो गर्म होता, तो उसी गर्मी कब तक बाकी रहती ना। अब हम्म कभी हम गर्मिया में कोई पत्थर को टच करें तो कितनी गर्मी रहती, अब हम्म उसकी आग बोले तो कितनी तेज रहेंगी ना।
तो वो आग उनको वहां पर महसूस होंगी फिर से। जी। और यहाँ पे बता रहे हैं कि मतलब उनके सामने उनको जो उनकी पूजा करते थे, जो समझते थे यही हमें बचाएंगे, उन्हीं के सामने उनको दुनिया में जलाया जा फिक्र रहा है। करते थे, उससे मोहब्बत रखते थे, खुश होते थे। तो हम्म। अब वो चीज उनको वहां कितनी तकलीफ दे रही ना, वो गर्मी, उसकी हम्म। हिद्दत, वो पत्थर हम्म। की। अब यहाँ जी। पर वो बैठ के क्यों बैठते, वो लोग उनको तस्कीन मिलती ना वहां बैठे तो, उनके दिल हम्म। खुश होते, उनको मतलब उनके मोहब्बत। सामने साबित हो जाएगा जैसे ना, एक चीज एक तरह से तो ऐसे लग अपना रहा है। जी। फिर लाजमी बात है, जिससे मोहब्बत है उससे अगर तकलीफ पहुंची तो इंसान को तकलीफ दोबारा हो जाती ना, दुगनी हो हम्म। जाती। तो कि जिस हम तो समझ रहे थे यही हमें आज के दिन बचाएंगे, और ये उल्टा फिर यही अजाब में मुब्तला है। अच्छा। तो सही अल्लाह, है। बहुत ही गहरी बात है। और फिर अल्लाह ताला देखिए। सही बात है। अच्छा भाई, तो क्या कहते हैं, फिर कुफर के शायर की तौहीन, मतलब अगर हम लोग इसको अपने ऊपर रख के देखें कि हम लोग क्या, हम भी कोई ऐसी चीजों से तो नहीं आज ना एक्सपेक्टेशंस हमारे लगाए हुए हैं। ख्वाहिशात, हम ख्वाहिशात में किस किस को पूछ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन हम्म। से सब चीजें आ जाती है ना इसमें, रस्म और रिवाज भी आ जाते, फिर हमारे फंक्शंस वगैरह सभी आ जाएंगे ना इसमें। क्योंकि नफ्स को भी, जो इसरार अहमद साहब फरमाते हैं कि अपन जो भी ख्वाहिश को भी कर रहे हैं वो भी शिर्क में आती, इंसान की हम्म। ख्वाहिश भी शिर्क में आती। तब ख्वाहिश में आकर हम क्या क्या काम नहीं कर लेते, हमारी क्या हम्म। क्या ख्वाहिशात नहीं रहती। तो जिस वो भी सही कह रही है, वो भी हो जाएगा। और जैसे कुछ नहीं होता कि बस एक आलिम को पकड़ लिया और बस ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, खत्म हो गई बात, बस ये इनका हरफ आखिर है मेरे लिए ना। इवन डॉक्टर स्टार के बारे में मेरे खुद जानने वाले हैं, वो कहते हैं भाई मेरे लिए काफी है डॉक्टर स्टार ना, वो जो कह रहे हैं, बस मुझे इससे आगे बहुत पीछे कोई प्यारे रिसर्च की तरीके जरूरत से, नहीं। जी बिल्कुल, बहुत एक्सप्लेन ऐसा करते तो वाकई उसके एंड तक हमको पहुंचा देते, उसकी रूह तक नहीं नहीं, पहुंचा मैं देते। दूसरी बात कह रही हूँ अजीज साहब, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ लोग मतलब इस तरह की बातें करते हैं कि हमारे लिए डॉक्टर स्टार ही काफी हैं, उन्होंने जो हमें बता दिया, अब हमें ये मत कहो कि आप नहीं, फर्दर वो तो रिसर्च करो, हमको चेक करो उनकी। जी। एक से चार तो देखना चाहिए ना, एक ही से जरूरी नहीं है। हम्म। हमको इल्म हासिल करने के लिए तो जरूरी, जैसे कि किताबें पढ़ रहे हैं तो हमको तो और वसी होना चाहिए ना, खुद भी हम्म। गौर करें और फिर हर एक के ख्यालात से भी वो बात हमको वाजे होती ना। एक ही की बात पर वो तो फिर वो गुलू हो जाएगा ना। एक को हम जो है बड़े मानते मानते मानते, फिर खुदा ना खास्ता हम उन्हीं को पूजना शुरू कर देंगे। तो सही वैसा बात है। नहीं अगर है। पूछना ही हुआ ना, अगर हम उनकी हर बात मान रहे हैं, तो हमें हर बात तो अल्लाह ताला की और नबी पाक वसल्लम की फिर माननी है ना असल में, तो फिर आपने तो वहीं पूछने वाली उस पे रख दिया ना उनको। फिर कदर जिलानी रहमुल्लाह को लोग क्या करे, वो भी तो हम्म। वही करते थे, लेकिन होते होते क्या करे, उनको गौसे पाकी बना दिए। तो हम्म। फिर इस तरह गुलो हो जाता, अगर एक ही को पकड़ कर बैठ जाए तो उसी के मुरीद हो जाएंगे ना। तो हम्म। इल्म के लिए वो तो नहीं है, वैसा तो नहीं कर सकते, वो मोतकीदीन कर सकते, तो फिर वो इत्तेखाद की बात आ जाती ना। तो हमको हम्म। वही तो नहीं करना है, सही, आपको बिल्कुल सही। हासिल करना जरूर है, लेकिन उनके मोतकीद नहीं बन जाना, अल्लाह का ही, अल्लाह से ही हमको जुड़ना है। हम उनसे क्यों अकीदत रखें। तो वो बात के हासिल करना अलग बात है, उसको जो है मोहब्बत से बिठा लेना अलग बात है। तो ये इसलिए उल्मा की भी मोहब्बत हो जाती दिल में। हाँ नहीं, वो हमको पसंद है, हमको उनकी बात अच्छी दिखती, बात हम्म। मत पसंद की आ गई फिर वहां पे। दिल हम्म। जिसको कहता है वैसी बात है। सही बात है जी। और किसी ने कोई व्यू दे रहा है अपना यहाँ पे, कि इस तरह के बुत जो हमने बनाए हुए हैं अपनी लाइफ के अंदर। अच्छा, फिर क्या है नेक्स्ट, क्या बुत बन रही है, कुफर के शायर की तौहीन से मकसूद दर हकीकत कुफर की तौहीन होती है। अच्छा, कुफर के शायर की तौहीन से मकसूद दर हकीकत कुफर की तौहीन होती है। इस सारी हकीकत की वजाहत कुरान मजीद ने एक दूसरे मुकाम पर खुद फरमा दी है। कुफर के शायर की तौहीन, ये किधर से आ रही है ये वाली बात। अच्छा, ये इस आयत में होगा ना। हाँ, शायर की जमा है ना ये। जी जी, मैं देख रही हूँ आयत में कहाँ पर आ रहा है कुफर के यानी अब शायर की जो बात हो रही है। अल्लम तफर। अच्छा, देखते हैं नीचे ट्रांसलेशन। अच्छा, कुरान मजीद ने एक दूसरे मुकाम पर खुद इसकी वजाहत फरमा दी है। सूरह अंबिया में, इन्नकुम वमा तअबुदूना मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून लौ काना हाउलाई आलिहतम मा वरदूहा वरदूहा। यार कैसे पढ़ूं उसको, ये क्या लिखा है। अच्छा, ये रुक गए यहाँ पे ना, फिर वकुल्ला सही से, वकुल्लुन सही। लौ काना हाउलाई आलिहतम मा वरदूहा वकुल्लुन फीहा खालिदून। सही। तुम और वो चीजें जिनकी, कैसे, जिनकी
खुदा के सिवा परस्तिश करते हो तुम, अच्छा तुम और वो चीजें जिनकी तुम खुदा के सिवा परस्तिश करते हो सब जहन्नुम का ईंधन बनोगे। तुम सबको उसमें जाना होगा। अगर ये वाकई माबूद होते तो जहन्नुम में ना पड़ते और तुम सब इसमें हमेशा रहोगे। उफ, कितना क्लियरली बता दिया ना। इन्नकुम वमा ताबुदूना, ताबुदूना यानी कि तुम जिसकी परस्तिश करते हो। ताबुदूना का हमने किया था ना, क्या था कि बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं ना इबादत करने के, कि फॉलो करना मतलब उसकी बातों को मानना, उससे मोहब्बत रखना, है ना। इस तरह करके निकल रहा था ना। तो हमें ये चेक करना है कि हम किस किस की बातों को मानते हैं, किस किस से मोहब्बत रख रहे होते हैं। और अल्लाह का हुक्म तोड़ने को भी हमें कोई इशू नहीं होता। बहुत मजे से हम तोड़ लेते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तो माफ कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो इन लोगों को मैं देखूँ ना जो मेरे आसपास हैं, इनकी बात को अभी मैं फिलहाल ऊपर रखूँ ना, बाद में मैं अल्लाह ताला से माफी मांग लूंगी ना जो मैंने अल्लाह ताला का हुक्म तोड़ा है। ऐसे होता है ना, हम लोग इस तरह से इजी ले लेते हैं ना, और फिर वो चीज हैबिट बन जाती है। और फिर हमें शुरू में हुक्म तोड़ते हुए, अल्लाह ताला का कोई भी हुक्म हो, पहली दफा तोड़ना एक बहुत मुश्किल काम मुझे लगता है, कि हमारी बॉडी खुद रेजिस्ट करती है वो तोड़ने में ना। लेकिन फिर उसके बाद जब एक दफा हो गया तो उसके बाद फिर हमें वो चीज बहुत कॉमनली हमारी लाइफ में इंक्लूड हो जाती है, फिर हमें बुरी भी नहीं होती लग रही होती, ऐसा लगता है मुझे। अच्छा, फिर नेक्स्ट है वबशिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ा रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। आयत नंबर 25। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अच्छा, अब नया टॉपिक। बाग का सबसे ज्यादा दिलकश तस्वुर ये है कि वो बुलंदी पर हो। ठीक है, बाग का सबसे ज्यादा दिलकश तस्वुर ये है कि वो बुलंदी पर हो और उसके नीचे नहर जारी हो। अच्छा, सही। बाग का सबसे ज्यादा दिलकश तस्वुर यह है कि वो बुलंदी पर हो, है वो बुलंदी पर, ठीक है, और उसके नीचे नहर जारी हो। कितना अमेजिंग कॉन्सेप्ट। बुलंदी उसके मंजर की दिलकशी में इजाफा करती है और सैलाब वगैरह की आफतों से महफूज रखती है, और नीचे बहने वाली नहर उसकी शादाबी की जमानत देती है। बुलंदी के बाग की तमसील इसी सूरह की आयत 265 में भी मौजूद है, ठीक है। बुलंदी के बाग की तमसील इसी सूरह की आयत 265 में भी मौजूद है। कमसली जन्नतिन, जन्नतिन बी बी रबवतिन, बी रबवतिन लग रहा है, ठीक है। कमसली जन्नतिन बी रबवतिन, आ, अल आया अच्छा, आयत, इस आयत का बता रहे हैं कि जेर बहस आयत में तहतिहल अनहार के अल्फाज से ये बात खुद ब खुद वाजे हो रही है कि ये बाग बुलंदी पर होंगे। कौल की मुख्तलिफ शक्लें। कौलू हादल्लज़ी रुज़क़ना मिन क़ब्ल। कौल की कई शक्लें होती हैं। कुलू बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, है ना, कि उसकी कई शक्लें होती हैं। एक कौल वो होता है जो सुना जाता है, एक कौल वो होता है जो सिर्रन होता है, आई गेस, है ना। एक कौल वो होता है जो सुना जाता है, एक कौल वो होता है जो सिर्रन होता है। कुरान में है सवाउम मिनकुम मन असर्रल कौला व मन जहरा बी। यकसा है तुम में से वो जो कौल को पोशीदा रखे और जो इसको जाहिर करे। मुजर्रद इशारे के लिए भी ये लफ्ज आता है, मसलन फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमन फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया। हमारी सूरह मरियम। इशारे से बता दे कि मैंने खुदाए रहमान के लिए रोजे की मन्नत मानी है, आज मैं किसी इंसान से कलाम नहीं करूंगी। जुबान हालो फेल से जो इशारा निकलता है वो भी कौल की एक शक्ल है। जुबान हालो फेल से जो इशारा निकलता है वो भी कौल की एक शक्ल है। अला बदल कयास, जो बात आदमी अपने दिल में कहता है उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। कलाम अरब और
قرآن مجید، کلام عرب اور قرآن مجید میں اس کی بہت سی نظیریں موجود ہیں. مثلاً سورہ مائدہ میں منافقین کا حال بیان ہوا ہے. یقولون نخشى ان تصیبنا دائرۃ فعسى الله ان یأتی بالفتح، ان یأتی ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا على ما اسروا انفسهم فی انفسہم نادمین. سورہ مائدہ. وہ کہتے ہیں ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی مصیبت نہ ہم پر آ پڑے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ فتح لائے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات دکھائے اور ان کو اس بات پر نادم ہونا پڑے جو یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. مذکورہ آیت میں ان منافقین کے دل کے خیال کو قول سے تعبیر فرمایا ہے. ٹھیک ہے، قول کی ڈفرنٹ شکلیں بتا کے اب بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو قول کا ورڈ آیا ہے نا، تو مذکورہ آیت میں ان منافقین کے دل کے خیال کو قول سے تعبیر فرمایا ہے. دل کے خیال کو قول سے اچھا، دل کے خیال کو قول سے تعبیر فرمایا ہے اور پھر یہ تصریح بھی فرما دی ہے کہ یہ ان کے دل کی چھپی ہوئی بات ہے. اسی طرح زیر بحث آیت میں قولو سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں میں خیال کریں گے کہ دنیا میں ہمیں قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن نعمتوں کے مزے اپنی بشارتوں سے چکھائے تھے وہی نعمتیں ہمارے سامنے اب اپنی حقیقی شکل و صورت میں آ رہی ہیں. ایک منٹ، آیت میں کیا ہے؟ آیت کیا تھی؟ یہ ہے نا، اسی آیت کی بات ہو رہی ہے. بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں قولو کدھر آ رہا ہے؟ کلما رزقوا منہم قولوا ھذا الذی رزقنا من قبل. اچھا، وَأُوتُوا مِن یہ اچھا وہاں پہ کہیں گے، صحیح ہے. مجھے ویسے سمجھ آ نہیں رہی ہے بات، ایک منٹ دوبارہ پڑھتی ہوں. کہ یہ جو آیت ہے نا ان کے دل کی چھپی ہوئی بات اس میں، ٹھیک ہے. یعنی کہ اسی طرح زیر بحث آیت میں قولو سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں میں خیال کریں گے کہ دنیا میں ہمیں قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن نعمتوں کے مزے اپنی بشارتوں سے چکھائے تھے وہی نعمتیں ہمارے سامنے اب اپنی حقیقی شکل و صورت میں آ رہی ہیں. یہ خیال ایک گہری مسرت، ایک عمیق احساس کامیابی اور ایک پرجوش جذبہ شکر و سپاس کے ساتھ ان کے دلوں میں پیدا ہوگا. وہ خوش ہوں گے کہ الحمدللہ جن وعدوں پر وہ جیے اور مرے وہ سب سچے ثابت ہوئے اور جس جنت کی نعمتوں کے مزے اب وہ لوٹ رہے ہیں اس کی ایک تمثیلی سے قرآن کی بدولت انہوں نے دنیا ہی میں کر لی تھی. یہ کیا لکھا ہے؟ اس کی ایک تمثیلی اسیر قرآن کی بدولت انہوں نے دنیا ہی میں کر لی تھی. مطلب اس کا جسے کہتے ہیں نا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مزہ چکھائیں گے. کچھ نہیں سمجھ آ رہا مجھے، میں کیا کروں؟ کوئی بتا سکتا ہے پلیز؟ اس کا ترجمہ ہے ادھر کہیں پہ؟ وبشر والا جو تھا، نہیں سوری اوپر چلی گئی میں. ترجمہ نہیں ہے نا اس لیے بھی شاید سمجھ نہیں آیا. ایک منٹ، آیت نمبر 25 رکے، میں ترجمہ اس کا کھولتی ہوں، ایک سیکنڈ رک جائے. ہم، 23 اس کے بعد یہ رہا. یہ رہا. اچھا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں. ٹھیک ہو گیا؟ اے پیغمبر جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست، یہ چیک کریں ذرا قرآن میں کتنا کلیئرلی یہ بات کی ہے اور ہم لوگ پتہ نہیں عمل پہ فوکس ہی نہیں کرتے. علم 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 پر ہی بس لگے پڑے رہتے ہیں اور ہمیں ٹینشن بھی نہیں ہوتی کہ ہم عمل کر ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے نا؟ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے.
जब कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो वहां हमेशा रहेंगे। ठीक है ना, कि वैसे पल वो उनको याद आएगा कि दुनिया में भी हम ऐसे फल खाते थे, जिसको यहाँ पे वाली बात कर रहे हैं ना कि नेमतों को देखकर, जन्नत की नेमतों को आई गेस देखकर ना, उन्हें दुनिया की वो याद आएगी, दुनिया की नेमत यानी कि कुरान पाक, है ना। और इस तरह से कुछ मेरे ख्याल से इसको कंपेयर कर रहे हैं ना कि दुनिया में जो हमसे वादे किए गए थे। अ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ तो ज्यादा सही से, चले कहीं और से समझने की कोशिश करूंगी। ठीक है। अच्छा, जी फरीन, क्या चीज नहीं समझ आ रही इसमें? ये जो सिंपल सी पैराग्राफ तो है ना। बात है। जी बताएं। क्या इसमें लिखा? पढ़िए, पढ़िएगा जरा सा, मैं दिख नहीं रहा मुझे। मज़कूरा आयत में इन मुनाफिकीन के दिल के ख्याल को कौल से ताबीर फरमाया है, और फिर ये तसरीह भी फरमा दी है कि ये उनके दिल की छुपी हुई बात है। इसी तरह जेर बहस आयत में कौलू से मुराद ये है कि वो अपने दिलों में ख्याल करेंगे कि दुनिया में हमें हम्म। कुरान मजीद और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन नेमतों के मज़े अपनी बशारतों से हम्म। चखाए थे, वही नेमतें हमारे सामने हम्म। अब अपनी हकीकी शक्ल सूरत में आ रही हैं। ये ख्याल एक गहरी हम्म। मुसर्रत, एक अमीक एहसास कामयाबी और एक पुरजोर जज्बे शुक्र से पास के साथ उनके दिलों में पैदा होगा। वो खुश हम्म। होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन वादों पर वो जिए और मरे वो सब सच्चे साबित हुए, और जिस जन्नत की नेमतों हम्म। के मजे अब वो लूट रहे हैं, उसकी एक तमसीली शेर कुरान की बदौलत उन्होंने दुनिया ही में कर ली थी। हाँ, तो यही है ना। वो जो, जब वहां जन्नत में पहुंचेंगे तो वहां पे जब आप लोगों को हर चीज इंशाल्लाह ताला मिलेगी, जैसे सेब है और ये जो भी फल यहाँ खाते हैं आप दुनिया में ना, तो वहां का फल वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। फिर हम जब देखेंगे उसकी शक्ल तो कहेंगे ओ यही तो हम खाते थे। वहां पे भी ये सेब था, ये अंगूर था, ये वो था, लेकिन वहां का जायका और हर चीज बिल्कुल डिफरेंट होगी। बहुत ही आला, बहुत ही आला, मतलब हर लिहाज से। वहां पे बीवियां भी होंगी। ये जो स्त्री आए थे ना, ऊपर हम्म। किसका है, ऊपर आए, उसमें क्या है बेटा? नहीं नहीं, ये पीछे करो कोई जरा सा। और, ये कोई और रेफरेंस है। वो हाँ, वो था कि पाकीज़ा अच्छा बीवियां अच्छा। होंगी जिसमें हाँ हमेशा रहेंगे। हाँ। जी। वलहुम फिहा अज़वाजुम मुतहहरतुम वहुम फिहा खालिदून, वो वाला है ना। वो हम्म। उसी के पहले है ना वो। उनको बशारत दी जाएगी तो वो खाएंगे जब हर चीज, तो उनको याद आएगा कि हमें ये जो वादा किया गया था, दुनिया में बताया जाता था कि तुम जब वहां जाओगे जन्नत में तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, तो वो रिकॉल करेंगे अपनी मेमोरी के अंदर। वो हम्म। तमाम चीजें वहां पे इज्जत महसूस करेंगे कि मेरे वादे बिल्कुल सारे सच साबित हो रहे हैं आज। तो इस हम्म। चीज को सही हो गया, सही, जज़ाकल्लाह खैरा। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ रही? जी जी जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्लियर हो गया। ओके। और भी कोई कुछ कह रहा है क्या? कुछ आवाज अनम्यूट देख लेती हूँ, अनम्यूट कौन है। लूना बच्चे आप अनम्यूट है, लेकिन आई गेस आपके माइक का इशू है, जो अक्सर हो जाते हैं। तो आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। अच्छा, रिस्क की दो किस्में। अच्छा, आई नीड मोर पीपल फॉर तदब्बर ना, वरना इससे तो मैं अकेले पढ़ती रहूंगी तो फिर वो बात ही नहीं हो पा रही। चले, रिस्क की दो किस्में। इस टुकड़े में रिस्क का लफ्ज भी काबिल गौर है। इस टुकड़े में रिस्क का लफ्ज भी काबिल गौर है। ये लफ्ज अरबी जुबान में भी और कुरान में भी रिस्क, क्या लिखा है ये, रिस्क मादी, मादी, हाँ रिस्क के मादी होगा, है ना, सही। ठीक है, ये लफ्ज अरबी जुबान में भी और कुरान में भी रिस्क के मादी और रिस्क के रूहानी दोनों ही के लिए इस्तेमाल हुआ है। रिस्क के मादी, रिस्क के रूहानी, ठीक है। सिर्फ खाने पीने की चीजों ही को रिस्क नहीं समझना चाहिए, बल्कि असली रिस्क वो इल्म और मार्फत है जो कुरान और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें हासिल हुआ है। ठीक है। रिस्क, रिस्क हम लोग तो रिस्क की दुआ करो, रिस्क की दुआ करो, हम लोग सिर्फ पैसा, माल, खाना पीना, कपड़े, ये सब इसमें ही ले रहे होते हैं ना रिस्क को। ठीक है। तो असली रिस्क कह रहे हैं कि वो इल्म और मार्फत है जो कुरान और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें हासिल हुआ है। इसी वजह से वही को कुरान ने रिस्क के लफ्ज से ताबीर फरमाया है। वही को, अच्छा, इसी वजह से वही को कुरान ने रिस्क के लफ्ज से ताबीर फरमाया है। और हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि उस कलमे से जीता है जो खुदा की तरफ से आता है। हाँ? हजरत मसीह अलैहिस्सलाम सुभान का अल्लाह, इरशाद, कितनी बड़ी बात कही है।
हाँ हाँ, ये बहुत बहुत आई बड़ी है। बात गेस कही। बाइबल में होगी फिर ये, है ना, अगर ये कह रहे हैं तो आई गेस, या कुरान नहीं में। नहीं। नहीं, वो कह रहे मादा, मतलब रिस्क मादा ही नहीं होता कि जो नजर आ रहा है आपको वही चीज नहीं है कि ये पहनना ओढ़ना कपड़े, ये तमाम अय्याशी दुनिया की जो है यही नहीं है, बल्कि एक रूहानी तौर पे जो सुकून मिलता है हर चीज से, कि कौल है, कलाम है, वही है, इल्म है, नॉलेज है, ये तमाम चीजें मिला के, मतलब दुनिया की मादा भी और रूहानी, वो दोनों चीजें मिला के तब ये टोटल रिस्क है इंसान के पास। इससे मुझे वो वाली चीज आ रही है, वो जो दज्जाल के दौर में होगा ना, कि कुछ खाने पीने को नहीं होगा, तो फिर इंसान को सुबहान अल्लाह पढ़ने की कुछ है ना तस्बीह उस वक्त इंसान पढ़े। कुछ मैं उससे रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, जो मुझे आता तो नहीं इतना अच्छा रिलेट करना, लेकिन वो बात जहन में आ रही है कि उस वक्त नहीं होगा ना इंसान के पास खाने पीने को कुछ, हाँ, तो उसका वो ये खाना पीना पढ़। खत्म हो जाएगा ना, खाने की भी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो अल्लाह अल्लाह की उसने फरमाया था कि तुम्हारी जो खाना पीना होगा ना, वो तस्बीह और तहलील होगी, अल्लाह का जिक्र हाँ। होगा। अच्छा, खत्म नहीं होगा, वो आप उसके काबू में होगा ना, दज्जाल के पास होगा, तो उसका वो, वो हाँ, उसकी। बेसिकली हाँ। बेसिकली उसके पास होगा, हाँ हाँ, उसके बेसिकली पास उसके होगा। पास। सही 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 सही। आप उसमें भी देखें, वो जो हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा का याद है आपको, कि वो जब उनके पास काम करने के लिए गुलाम लेने को आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उन्होंने प्रैक्टिकली उनको गुलाम नहीं दिया, बल्कि कहा जाके तुम जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर की तस्बीहात पढ़ो, उससे हम्म। तुम्हारा वो, यानी कि वो आज तक भी तस्बीह फातिमा के नाम से मशहूर है ना, तो वो हम्म। पढ़ने को कहा, यानी कि रूहानी तौर पे भी वो पढ़ने से इंसान के अंदर वो हिम्मत और कुव्वत और ताकत आ जाती जिंदा है। रहने का टाइम वो आ जाता है। सही सही है ना? सही 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 सही, बिल्कुल सही। अच्छा भाई, तो फिर नेक्स्ट है कि ठीक है, तो आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि उस कलमे से जीता है जो खुदा की तरफ से आता है। मिन कबलू की दो तावीलें लोगों ने की हैं। एक ये कि इससे पहले दुनिया में, दूसरी ये कि इससे पहले इसी जन्नत में। हाँ, वो इसके आगे लिखा नहीं होता ना, मिन कबलू के आगे, के कबला के आगे मुजाफिल है क्या होगा, तो अब वो छुपा हुआ है, तो हमारे कुरान में नहीं रिटन है, तो फिर उसके उलमा ने अलग अलग मीनिंग्स निकाले होंगे ना। तो एक मीनिंग ये कह रहे हैं कि इससे पहले, या तो इसका तर्जुमा ये हो सकता है कि इससे पहले दुनिया में, दूसरा ये कि इससे पहले इसी जन्नत में। ठीक है, अब इसको देखते हैं। मेरे उस्ताद मौलाना फराही रहमतुल्लाह अलैह ने इन दोनों तावीलों को जमा करने की कोशिश की है। ओके, उन्होंने इन दोनों तावीलों को जमा करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे नजदीक, जैसा कि मैंने ऊपर इशारा किया है, ये इशारा दुनिया की तरफ है। सही है। इसके वजू आगे चलकर वाजे होंगे। अच्छा, मिन कबलू वो है ना कि इससे, यानी कि ये नेमतें इस जैसी हमें दुनिया में भी मिलती थी, वो वाली जो बात है ना, कि हमने मतलब ये इस जैसे फल देखे हुए हैं और वाली, तो मिन कबलू वो कह रहे हैं कि इससे पहले दुनिया में या इससे पहले इसी जन्नत में। सही है ना, ये इसके ऊपर वो बात कर रहे हैं कि ये दो मीनिंग्स निकल सकते हैं इसके। इसी दुनिया में समझ आ रहा है, जन्नत में तो समझ नहीं आ रहा। इससे पहले नहीं, इसी दुनिया जन्नत में ही में लग हमें रहा है ये मुझे, हाँ, दुनिया दुनिया में ही लग रहा है कि दुनिया में इससे मिलते जुलते हुए जो स्टूडेंट ने कहा हम्म, ना कि फल लग तो ऐसी रहा है, चीजें लेकिन नेमतें बात मिली। यह है कि अगर इन्होंने ये सोचा है कि इसी इसी जन्नत में, तो वो क्या सोचा है, अब उसकी क्यूरियोसिटी हो रही है कि कुछ तो जबरदस्त सा पॉइंट होगा इनके पास भी ना, कि इससे पहले इसी जन्नत में हमें ऐसे मिलती थी, ऐसे फल मिलते थे, या कुछ इस तरह से ना। तो मजेदार सा वो भी कुछ कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन अब पता नहीं, वो कह रहे हैं कि आगे कहीं पे आएगा शायद। चले, नेक्स्ट हो गया अजवाजुम मुतहहरा। अजवाज मुतहहरा का मफहूम। जौज के माना जोड़े के हैं। औरत के लिए मर्द जोड़ा है और मर्द के लिए औरत। इंसान के अंदर कुदरत ने खुद एक खला छोड़ा है, जो इस जोड़े के सिवा किसी और शक्ल से पूरा नहीं होता। इंसान के अंदर कुदरत ने खुद एक खला छोड़ा है, जो इस जोड़े के सिवा किसी और शक्ल से पूरा नहीं होता। इस वजह से उसके बगैर इंसान के लिए किसी नेमत का तसव्वुर भी कामिल नहीं होता। चुनांचे जन्नत में भी जो कमाल नेमत की ताबीर है, अच्छा, जन्नत में भी जो कमाल नेमत की ताबीर है, उसका जिक्र मौजूद है। इसके साथ मुताहरा की सिफ्त इस हकीकत को जाहिर कर रही है कि निहायत एहतमाम के साथ उनकी तरबियत हुई है। अच्छा, इसके साथ मुताहरा की सिफ्त इस हकीकत को जाहिर कर रही है कि निहायत एहतमाम के साथ उनकी तरबियत हुई है और उनका तज़किया किया गया है,
تاکہ وہ اہل جنت کی رفاقت کے لیے پوری طرح موزوں ہو سکیں۔ یہ مفہوم لفظ مطہرہ سے نکلتا ہے، اس لیے کہ تطہیر کے معنی ہے خاص اہتمام و توجہ کے ساتھ کسی کے عادات و خصائل اور طبیعت و مزاج کو سنوارنا اور پاکیزہ بنانا۔ ہاں، یہ وہ ہے نا باب تفعیل والا، جس میں ہوتا ہے نا درجہ و درجہ کام ہو رہا ہے، بہت اہتمام سے ہو رہا ہے، بہت ہی مبالغہ بھی آتا ہے نا کہ بہت ہی زیادہ انٹینسٹی سے ہو رہا ہے۔ ہاں باب تفصیل آ گیا، بالکل ہاں صحیح، زبردست۔ وہ مطہرہ وہ شد آیا نا، اس سے بھی شک ہوا تھا، ادھر کنفرم ہو گیا الحمدللہ۔ واو، یہ مطلب سورہ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو بہت سے ضروری آداب کی تعلیم دینے کے بعد فرمایا ہے۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں نا، یہاں پہ جو بات نکلی ہے وہ یہ نا کہ وہاں پر زوج ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا ازواج مطہرہ نا، یہ ہم لوگ اس کو فیمیل کے سینس میں لیتے ہیں نا آئی گیس، یہ لیکن بیسیکلی مرد کے لیے عورت جوڑا، عورت کے لیے مرد، اس طرح نا زوج کا ورڈ ہے، اور مطہرہ تو کیونکہ یہ گولتا۔ ازواج کے معنی اسپاؤس ہے، فرین ہوں ازواج کے معنی اسپاؤس ہے، ہاں جیسے کشانتی، دنیا میں کہتے ہیں نا میرے ذہن اسپاؤس۔ میں نا یہ آتا تھا یہ گولتا ہے نا، لگتا تھا کہ شاید فیمیلز کی بات ہو رہی ہے، ہاں لیکن یہ میل ہاں اور فیمیل ہاں بوتھ ہے صحیح، نا۔ ہاں اوکے ہاں اوکے، بہت ہے۔ اور اچھا اچھا۔ اچھا وہاں پہ یعنی کہ جنت میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو پارٹنر ہوگا جس کو ملے گا، تو ہاں آلریڈی ہمیں نہیں پتا کہ کون کس کو پارٹنر وہاں ہوگا، لیکن ہوں اس پارٹنر کی پہلے سے ایسی تربیت کر دی جائے گی کہ مطلب بہت اعلیٰ قسم کی تربیت کہ جو آپ کو پسند آئے، مطلب اتنا ہوں ہر شخص کے لیے اس کا جوڑا رفاقت جو ملے گی اس ہوں سے، جس سے آپ کو سکون ملے گا وہاں، تو وہ وہاں پہ ہوگا۔ یہاں پہ ایک بچی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بھئی یہ کیا یہی والا میاں وہاں پہ مل جائے گا، یہ کیا مصیبت ہے؟ میں نے کہا نہیں، جو تمہیں پسند ہوگا ہاں، وہ دیں گے اللہ تعالیٰ، یہ فکر نہیں کرو۔ صحیح بات ہے۔ اور وہ مطہرہ، اچھا جو مطلب کہ مجھے ایک چیز تھوڑا سا کلیئر کریے گا، جو حوروں کا کانسیپٹ ہے، اور یہ یعنی کہ جو یہاں پہ جی اچھی خواتین ہوں گی جو جنت میں جائیں گی، جی وہی حور میں کنورٹ ہوں گی، یا ہاں، حور کوئی اور بھی ہوتی ہے مطلب جو اس دنیا میں نہیں نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو یہ ابھی دیکھا نا، اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وہاں پہ تیار کر کے رکھا ہوگا وہ ازواج جو ہیں ان کے نا، تو مردوں کے لیے چونکہ لیڈیز کا زیادہ ہوتا ہے اس لیے ہوں ہورے ہی ہم سمجھتے ہیں، تو وہاں ہمارے اسپاؤزز جو ہے پہلے سے بہت تیار ہوں گے اور بہت اچھے ہوں گے جن سے آپ کی طبیعت خوش ہوگی، تو نہیں وہ ہے کشونتی اسی طرح پہلے تو مرد بھی لکھا ہے، کہتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے پہلے کا مطلب وہ کہ نہیں، جب ہم وہ جو وہاں آپ انٹر کہہ ہوں۔ رہی ہیں نا، ہاں ہاں آپ ہاں جو جی۔ کہہ رہی ہیں یہاں کی بیویاں، تو جو دنیا کی جو نیک بیویاں ہیں نا، ہاں وہ ہاں وہاں پہ جا کے بہت خوبصورت حوریں بن جائیں گی، چاہے وہ چاہے جیسے کالی کلوٹ بھی ہو تو وہ بھی وہاں جا کے ہوں بہت حسینہ بن جائے گی کہ جس کو دیکھ کے مرد کو اچھا، جو مرد دنیا میں بہت مطمئن ہے اپنے بیویوں سے، اور جو ہوں بیویاں اپنے میاں سے بہت ہی مطمئن ہے، تو وہ جوڑے وہاں پہ بھی ویسے ہی وہ چاہیں گے، تو اللہ ہوں تعالیٰ انہی جوڑوں کو بہت حسین بنا کے وہاں پہ بھی ملائے گا۔ مطلب اور یہ حوروں، ہوں جو جی، یہ حوریں جنت میں ملتی ہیں نا، 70 حوریں، کہتے ہیں ان سے بھی زیادہ خوبصورت یہ عورت بن جائے گی جو دنیا کے اندر وہ تو صحیح جو ہے، اس کی بیوی وہ صحیح مومن کشانتی، ہے۔ یہاں والی تو درج جا کے ٹھیک ہے، وہ جنت میں جو عورتیں جائیں گی سمجھ آ گیا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی الگ مخلوق بھی ہے جو اس دنیا میں نہیں ہوگی، جو یہ آتی ہے نا حوروں والی بات ہاں کہ نا، ہاں نا، وہ تو حوریں تو ہے نا، یہ 70 حوریں کہاں سے آئیں گی اتنی ساری؟ جو ہے تو وہ تو ہے وہاں پہ، ایک ایک مرد کو کہتے ہیں 70 حوریں ملیں گی، وہ اچھا سب اچھا وہاں سے پہلے ہی سے تیار بیٹھی ہوئی ہیں، اچھا، وہ اس ویٹ دنیا کر میں رہی نہیں، ہیں، اس دنیا کی اور مخلوق نہیں ہے، وہ بلکہ نیکسٹ دنیا میں دنیا کی ہے۔ ہاں وہ اگلی دنیا کی نہیں نہیں مخلوق ہے، نہیں دیٹ مینس، نہیں، اوکے جی اوکے۔ جی، اچھا اچھا اچھا، صحیح ہاں نا، صحیح وہ صحیح۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ لعنت، کیا لعنت بیچتی ہیں جو بیویاں ہاں یہ ہاں تو بڑی صحیح۔ عجیب سا ہوتا ہے کہ وہ لعنت بیچتی ہے اگر عورت کو ناراض کرتی ہے اس کے ہسبینڈ کو، اور وہ وہاں جا کے اس کا میاں بنے گا، تو وہ عورتیں ان کے اوپر لعنت ملامت وہاں سے کرتی رہتی ہیں، وہ یعنی وہ ہو ابھی بھی موجود ہیں وہاں پہ، دیٹ مینس ہے نا؟ ہاں وہ اچھا موجود اچھا ہیں اچھا اللہ اچھا، کے پاس۔ اوکے اوکے اوکے، جی صحیح صحیح، تھینک یو سو مچ، صحیح ہے۔ اچھا بھائی، اور کسی نے کوئی بات کہنی ہے، کچھ پوچھنا ہے تم نہیں نے تو؟ سلیم کی اتنی مزے کی کلاس ہوتی ہے نا کہ نیند سے میں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں۔ آپ کے کتنے بج رہے ہیں؟ ماشاء اللہ سے 4:30، شاباش۔ اچھا اب چلے تو آگے بڑھتے ہیں۔ چلو بولے بولے، ٹھیک ہے، نہیں نہیں بولے، کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں
नहीं नहीं ठीक है, नहीं मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता हो तो जी तुम्हारा, जी जी। अचानक मैं खोलती हूँ तो पता चले। हाँ तुम मुझे अगर बेल दे दिया करो तो मैं उठ जाया जी करूँ। जी, वेल का भी ठीक है, कर रहे हैं इंशाल्लाह, कल परसों से करते हैं स्टार्ट। अच्छा ओके, चाहिए। अच्छा चलो भाई ठीक तो है, अल्लाह हाफिज। अच्छा, फिर सूरह अज़ाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को, ठीक है, उनके अहले बैत को बहुत से जरूरी आदाब की तालीम देने के बाद फरमाया है। ये सूरह अज़ाब की बात क्यों हो रही है, क्या बात हो रही थी यहाँ? तो बात हो रही थी ना अज़वाज मुतहरा की, ठीक है, आदात व खसाइल और तबीयत मिजाज, मतलब सवारा पाकीज़ा बनाया बहुत अच्छे से, वो वहां पे रेडी है। लेकिन सूरह अज़ाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को बहुत से जरूरी आदाब की तालीम देने के बाद फरमाया। अच्छा, ये से रिलेटेड होगा, सही। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सूरह अहज़ाब। अल्लाह तो बस ये चाहता है ए नबी के अहले बैत कि तुमसे आलाइश आलाइश दुनिया को दूर करे और तुम्हें पाक करे, जैसा कि पाक करने का हक है। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिबा मसलम मा बऊदतन फमा फौकहा फअम्मा الذين आमनू फयअलमून अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम वअम्मा الذين कफरू फयक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। आयत नंबर 26। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिबा मसला। ज़र्ब मिसल के माना है किसी हकीकत को तमसील के पैराए में समझाना। ज़र्ब मिसल, ज़र्ब मिसल के माना है किसी हकीकत को तमसील के पैराए में समझना। अच्छा। अम, आला हकाइक और रूहानी लताइफ, आला हकाइक और रूहानी लताइफ को जब तक तमसील का जामा ना पहनाया जाए उस वक्त तक वो आम अकल की गिरफ्त में नहीं आते। इस वजह से रूहानी हकाइक की तालीम में इस सिनफ कलाम को बड़ी अहमियत हासिल है। चुनांचे अंबिया और हुक्मा, हुक्मा के कलाम में ये क्या है? हुक्मा, चुनांचे अंबिया और हुक्मा के कलाम में इसकी बड़ी कसरत होती है। हिकमा होगा शायद, हिकमत, पता नहीं। अच्छा, चुनांचे अंबिया और हुक्मा के कलाम में इसकी बड़ी कसरत होती है। इसका अंदाजा तौरात और इंजील पर एक नजर डालने से हो सकता है। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का कलाम तमसीलात से भरा हुआ है। अच्छा, यानी कि बाइबल ना, है ना, वो तमसीलात से भरा हुआ है। मतलब वो कह नहीं, रहे हैं किसी भी चीज को जब किसी को समझाया जाता है तो मिसाल दी जाती है, तब वो समझ आ जाती है। वो तो तमसीलात सही, वही है ना, तो ठीक है। इसीलिए हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के इंजील में बहुत सारी तमसीलात दी गई हैं। जैसे ये कुरान में अभी ये जन्नत का तमसील दी ना, जन्नत में वो फल होंगे, ऐसे होंगे, औरतें होंगी, ऐसी होंगी, वो तो वही कह रहे हैं हजरत मसीह के इंजील में बहुत ज्यादा तमसीलात मौजूद ये ऐसे क्यों कह रहे हैं? हजरत मसीह अलैहि सलाम का कलाम, मतलब बेसिकली वो भी तो अल्लाह ताला का ही कलाम था ना, जैसे हम कुरान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम तो नहीं कहते ना। मुझे ये है। थोड़ा सा उनका क्लियर कर दे कलाम कॉन्सेप्ट। ये है ना कि कुरान तो कलाम अल्लाह है ना, और हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के पास बाइबल रिटन शक्ल में आई थी, और सारी सारी किताबें और सारे सहीफे रिटन ऊपर से अल्लाह के पास से उनके पास आए थे। सही सिर्फ है। एक कलाम अल्लाह तो सिर्फ कुरान है, और उनके पास जो आया था तो फिर उसको जब वो बयान करते थे तो वो तमसीलात दे दे के बयान करते थे। उनके जब वो कलाम करते थे ईसा मसीह अलैहिस्सलाम, तो तमाम बाइबल को पढ़ पढ़ के फिर वो तमसील दे दे के, ताकि लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, वो तमसील वाली बात तो समझ आ गई, बस ये कलाम पर मुझे हो रहा था कि हजरत मसीह का कलाम क्यों बोल रहे कलाम हैं। हजरत मसीह का तो नहीं, तो मतलब अल्लाह ताला का ही कलाम था, वो रिटन फॉर्म में आया बेशक, चलो किताब, किताबुल्लाह हाँ, कह लें जो, लेकिन वो फिर लेकिन वही कलाम, मतलब उनका कहा ही जाएगा कि ये उनके पास एक रिटन बुक है, तो इसलिए उन्होंने मसीह का कलाम कह दिया कि वो सही, जो बोलते थे। बोलते थे जो उनका सही है, सही। अल्लाह का ओके। नहीं था। मतलब हाँ, अल्लाह ताला डायरेक्ट नहीं बोल रहा था ना, तो इसलिए डिफरेंशिएट करना है, इसलिए उन्होंने कहा मसीह का कलाम। अच्छा, सही है। तो उसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं, जो इंजील है, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी बेशुमार तमसीलात हैं।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी बेशुमार तमसी, वही बात आ रही है पीछे से ना कि अंबिया के कलाम में बहुत तमसीलात होती हैं। कुरान में भी इस सिनफ कलाम की निहायत आला मिसालें मौजूद हैं। ठीक है, अब ये बहुत ही मजेदार सा टॉपिक होगा तमसील वाला ना। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ से इंशाल्लाह फिर कल कंटिन्यू करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।